Now see here, what do you mean by spherical mirrors? So spherical mirrors are the part of a hollow glass sphere whose one side is silvered. Part of hollow glass sphere. Glass sphere whose one side is silvered. That is called the spherical mirror. About the plane mirror, you know. Now suppose this is a hollow glass sphere and you cut it from here. You cut this hollow glass sphere from here and then remove this part. It's clear. Similarly, cut from here and remove this part. So you will get two curved parts. One curved part is this and the other curved part is this. Here in one curved part, you do the silvering in the outside. And on this curved part, you do the silvering in the inside. So see here, if you see this first one, here, this side is the silvered. And when this side is silvered, what will happen? It will become reflecting. It will become reflecting. This is clear? While here, if you see, then this is the silvered side. So this will be the reflecting surface. So there are two types of the curved mirrors. There are two types of the curved mirrors. दो टाइप के हमारे पास कर्व्ड मिरर्स हो गए. One in which the reflecting side is the inner side and other in which the reflecting side is the outer side. One in which the reflecting side is that side in which that surface is bulging out. जबकि दूसरे में क्या है, सरफेस क्या है, अंदर की ओर दबा हुआ. रिफ्लेक्टिंग सरफेस अंदर की ओर दबा हुआ. यहाँ पर रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या है, ऊपर की ओर उभरा हुआ है. आए समझे? तो ये दो टाइप के कर्व्ड सरफेस हो गए. इसमें इसको क्या कहते हैं मालूम है किसी को? दिस फर्स्ट वन इज नोन एज, कौन बताएगा? कॉन्केव मिरर. Concave mirror. While the second one is known as convex mirror. It's clear? This is concave mirror and this is convex mirror. It's clear? Later we will come to know that this is also known as converging mirror. Converging mirror. ये रेज ऑफ लाइट को एक पॉइंट पर फोकस कर देगा. ये डाइवर्जिंग मिरर है. मिरर ये रेज ऑफ लाइट को स्प्रेड कर देगा. मतलब क्या है? व्हाट इज स्फेरिकल मिरर? इट इज द पार्ट ऑफ hollow glass sphere whose one side is silvered. You take a hollow glass sphere and take out, you cut it like this, and then on these parts, in one you do the silvering in the outer surface, in the other silvering is done on the inner surface. So one is called the concave mirror and other is called the convex mirror. आए समझे? अब कुछ एक टर्म्स हैं ना, वो टर्म्स भी जानने जरूरी है. एक टर्म है सेंटर ऑफ कर्वेचर. सेंटर ऑफ कर्वेचर दिखाई न दे रहा हो. Center of curvature, which is denoted by the symbol C. Center of curvature denoted by the symbol C.
It is what? Center of that sphere, of which curved surface of spherical mirror is a part. Mirror is a part. It is the center of that sphere of which the curved surface of spherical mirror is a part. This is the center of curvature. यहाँ पर ये सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया, ये क्या हो गया? सेंटर ऑफ कर्वेचर. यहाँ पर ये सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया. Now there is one important property of center of curvature. What that important property? If you join center of curvature to any point on the spherical mirror, that line will be normal at that point on the spherical mirror. अगर स्फेरिकल मिरर के किसी भी पॉइंट को सेंटर ऑफ कर्वेचर से ज्वाइन कर दें तो वो लाइन क्या हो जाएगी? स्फेरिकल मिरर के उस पॉइंट पर नॉर्मल होगी. आए समझे? मतलब परपेंडिकुलर होगी. सो हियर दिस इज द प्रॉपर्टी. व्हेन इफ एनी पॉइंट on spherical mirror is joined with center of curvature, then that line will be normal at that point of center of at that point of spherical mirror. स्फेरिकल मिरर के उस पॉइंट पर क्या होगी? नॉर्मल होगी. देन देयर इज वन मोर टर्म, रेडियस ऑफ कर्वेचर. रेडियस ऑफ कर्वेचर, whose symbol is capital R. What is radius of curvature? Radius of that spherical mirror, spherical surface of which the curved surface of mirror is a part. Radius of that sphere of which spherical mirror is a part. मतलब ये क्या हो जाएगा? ये तुम्हारा रेडियस ऑफ कर्वेचर. कोई भी लाइन सेंटर से स्फेरिकल मिरर को मिला दें, दैट लाइन विल बी द रेडियस. दैट लाइन विल बी द रेडियस. दिस इज क्लियर? सेंटर को स्फेरिकल मिरर के किसी भी पॉइंट से मिला दे, दैट इज नोन एज रेडियस. अब देख लो, अगर हम ये एक्चुअल में मिरर्स को देखें तो कुछ क्या होते? सर्कुलर शेप में होते, जैसे तुमने लेंस देखा होगा ना. उसी तरीके से मिरर्स भी होते. एक साइड सिल्वर्ड होती है, दूसरी साइड क्या होती है? रिफ्लेक्टिंग होती है. जो ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है उसका जो सेंटर है, दैट इज नोन एज द पोल. पोल क्या कहलाता है? सेंटर ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस. आए समझे? जो ये सर्कुलर पार्ट है उसका सेंटर. सो पोल क्या है? इसका सिंबल क्या है? पी है. ये क्या है? सेंटर ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस. मतलब ये पॉइंट पोल हो गया, ये पॉइंट क्या हो गया? पोल हो गया. यहां पर उसको कहां शो करेंगे? ये पॉइंट center of the reflecting surface is known as pole. Center of reflecting surface is known as pole. This point is clear?
समझ में आया? अब देख लो, एक टर्म है एपर्चर ऑफ द मिरर। ये तुम्हारा कौन सा मिरर है बोलो? M2 की मिरर का नाम है, दिस इज द पोल एंड दिस इज द सेंटर ऑफ कर्वेचर, एपर्चर ऑफ द मिरर। तो देख लो, अभी हमने बताया रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या है, ये पूरा रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। लाइट यहां पर कहीं भी पर पड़ेगी वो क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्टिंग हो जाएगी। सो व्हाट इज द मेजर ऑफ एपर्चर, द डायमीटर ऑफ दिस सर्कुलर पार्ट, ये जो क्या कहलाता है, इट इज कॉल्ड द एपर्चर। ऐसे जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है जो कि सर्कुलर शेप में है, उसका डायमीटर क्या कहलाता है, एपर्चर, एंड दैट वी डिनोट हियर बाय दिस means M1 M2 is the measure of aperture. M1 M2, length of M1 M2 is measure of aperture. Aperture means here वो पोर्शन जिससे रिफ्लेक्शन हो सके। एपर्चर का मीनिंग होल होता है, पर यहां पर वो पोर्शन विच इज ओपन फॉर रिफ्लेक्शन, सो दैट इज द एपर्चर। देन देयर इज वन टर्म प्रिंसिपल एक्सिस। सबको मालूम होगा प्रिंसिपल एक्सिस क्या है, एन इमेजिनरी लाइन पासिंग थ्रू पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। इमेजिनरी लाइन passing through pole and center of curvature, that is called the principal axis। यहां पर प्रिंसिपल एक्सिस ये हो गई। ये अगर मिरर है, ये कौन सा मिरर है, कौन सा मिरर है, ये भी कॉनकेव है, आए समझे? ये तुम्हारा पोल है, सेंटर कहीं कुछ इधर होगा, ये क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल एक्सिस। दिस लाइन इज कॉल्ड द प्रिंसिपल एक्सिस, दिस लाइन इज कॉल्ड द प्रिंसिपल एक्सिस। ये कॉनकेव मिरर दोनों हैं, दोनों कॉनकेव मिरर हैं। अब अगर हम कॉन्वेक्स बनाए, देख लो, ये तुम्हारा पोल है, here this is the center of curvature, this line is called the principal axis, this line is called the principal axis। उसको हमने इस तरफ इसलिए बढ़ाया है इस साइड में, क्यों, क्योंकि यहां पर जो रे ऑफ लाइट आएगी वो इस तरफ से आएगी, तभी रिफ्लेक्ट हो पाएगी, क्योंकि ये साइड क्या है, सिल्वर्ड है, इधर से तो रिफ्लेक्शन हो ही नहीं पाएगा। दिस इज क्लियर, ये सबको समझ में आ गया? अब एक टर्म है फोकल पॉइंट। फोकल पॉइंट ये बड़ा इंपॉर्टेंट टर्म है। इट इज दैट पॉइंट ऑन प्रिंसिपल एक्सिस थ्रू विच rays of light either actually converge or appear to diverge after reflection, which
fall on the mirror parallel to principal axis before reflection. अब सब लोग इसको समझ लें। फोकल पॉइंट क्या है? इट इज दैट पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस through which reflected rays either actually converge or appear to diverge after reflection, which are coming parallel to principal axis before reflection. मतलब जो रेज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आती हैं बिफोर रिफ्लेक्शन, वो आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या करेंगी? यहां पर ये रेज, यहां पर लाइट किधर से आएगी? ये रेज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आ रही है। आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या करेंगी? दे विल एक्चुअली कन्वर्ज टुवर्ड्स द फोकल पॉइंट। यहां पर कॉन्केव मिरर में वो एक्चुअल में कन्वर्ज करेंगी टुवर्ड्स द फोकल पॉइंट। मतलब क्या है? फोकल पॉइंट यहां कहीं होगा, ये ऐसे चली जाएगी, ऐसे। ये वाली क्या है? ये ऐसे चली जाएगी। इसको डबल एरो से शो कर दें तो ये ऐसे चली जाएगी। समझ में आया ना? ये रेज पैरेलल आ रही है, पर आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या हो रही है? दे एक्चुअली कन्वर्ज टुवर्ड्स द दिस पॉइंट। So this point towards which they are converging, these rays are converging. This point towards which these parallel rays are converging is known as focal point. और पोल की डिस्टेंस फ्रॉम द फोकल पॉइंट क्या कहलाती है? ये फोकल लेंथ कहलाती है, जिसको स्मॉल एफ से डिनोट करते हैं। डिस्टेंस ऑफ पोल फोकल पॉइंट फ्रॉम द पोल इज नोन एज द फोकल लेंथ। यहां पर देख लो, यहां पर रेज किधर से आएंगी? इस तरफ से आएंगी। एक रे ऐसे आई, दूसरी रे कैसे आई? ऐसे आई। रिफ्लेक्शन उसी तरीके से होगा जैसे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन होता है। According to laws of reflection, angle of reflection will be equal to angle of incidence. तो अगर यहां हम देखें तो ये आफ्टर रिफ्लेक्शन रे किधर जाएगी? ये इंसिडेंट रे हो गई। समझ में आया ना? ये क्या हुआ? पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। यहां पर नॉर्मल ड्रा करने के लिए क्या करेंगे? इसको सेंटर ऑफ कर्वेचर से मिला दें। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या हुआ? ये हुआ ना, ये इंसिडेंट रे हुई, ये पॉइंट क्या हुआ? पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। इस पॉइंट पर नॉर्मल ड्रा करने के लिए इसको कहां से मिला दिया गया? सेंटर ऑफ कर्वेचर से। तो ये क्या हो गई? लाइन नॉर्मल हो गई। ऐसा समझे? इसको हम नेम कर दें पी क्यू। क्यू पॉइंट पर नॉर्मल ये हो गई सी क्यू एन। आफ्टर रिफ्लेक्शन ये क्या होगी? इसी तरफ जाएगी ना, तो इसको हमने ऐसे वो कर दिया। अब देख लो, इसी तरीके से ये वाली किधर जाएगी? ये आफ्टर रिफ्लेक्शन किधर जाएगी? यहां पर हम देख सकते हैं, इट विल गो इन दिस डायरेक्शन। ये रिफ्लेक्टेड रे ऐसे जा रही है, ये वाली रिफ्लेक्टेड रे इस तरीके से जा रही है। अगर इनको हम इस तरफ बढ़ाएंगे ये तो मिलेंगी ही नहीं। बट व्हेन दे आर प्रोड्यूस्ड बैक, when they are produced back, they appear to come from where? They appear to come from this point. ये पॉइंट क्या कहलाता है? फोकल पॉइंट। ये पॉइंट क्या कहलाता है? फोकल पॉइंट। समझ में आ गया ना? मतलब फोकल पॉइंट क्या है? इट इज दैट पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस through which rays of light either actually converge or appear to diverge after reflection, which are coming, which fall on the mirror parallel to principal axis before reflection. It is clear? Now what will be the focal length here? Focal length will be this distance. This distance will be the focal length. मतलब focal length क्या है? Focal length
जिसको स्मॉल f से डिनोट करते हैं, डिस्टेंस ऑफ फोकल पॉइंट फ्रॉम पोल ऑफ मिरर। मिरर के पोल से फोकल पॉइंट की डिस्टेंस क्या कहलाती है? फोकल लेंथ। दिस पॉइंट इज क्लियर? बोलो। यस सर। अब देख, इसको क्या कहेंगे? फोकल लेंथ कहेंगे। यहां पर देखें तो ये क्या है? यहां पर रेज अपीयर टू मीट है, रिफ्लेक्टेड रेज अपीयर टू मीट है। तो ये क्या है? कॉन्वेक्स मिरर का फोकल पॉइंट वर्चुअल होता है। फोकल पॉइंट ऑफ कॉन्वेक्स मिरर is virtual. And why virtual? Because reflected rays are appear to meeting. It's clear. While in concave mirror, focal point is real. It's real. फोकल पॉइंट क्या होता है? रियल होता है। आए समझे? अब देख लो, इसके बाद ये क्या है? साइन कन्वेंशन है, वो हम तुमको बता दे पहले ना। एक चीज और भी बता दे ना, जैसे ये मिरर है, जैसे यहां पर हम ये देख, तो सब लोग देख सकते हैं। अगर हम देखें यहां प्रिंसिपल एक्सिस क्या होगी? ये पेन क्या कर रहा है? प्रिंसिपल एक्सिस की पोजीशन को शो कर रहा है। ये मिरर का रिफ्लेक्टिंग पोर्शन है और ये पेन क्या शो कर रहा है? प्रिंसिपल एक्सिस शो कर रहा है ना। ऐसे यहां पर प्रिंसिपल एक्सिस ये, तो जो रेज नियर टू द फोकल पॉइंट, नियर टू द प्रिंसिपल एक्सिस है, उनको क्या कहते हैं? पैरेक्सियल रेज। ये रेज जो नियर टू द प्रिंसिपल एक्सिस है वो क्या कहलाती? पैरेक्सियल रेज, which are closer to प्रिंसिपल एक्सिस। जबकि जो रेज एकदम आउटर पोर्शन पर पड़े, यहां पर पड़े, यहां पर पड़े, मतलब यहां पर पड़े आके, यहां पर पड़े आके, मिरर की एज पर पड़े आके, वो क्या कहलाती हैं? मार्जिनल रेज। इनको क्या कहते हैं? मार्जिनल रेज। अवे फ्रॉम प्रिंसिपल एक्सिस। ये प्रिंसिपल एक्सिस से दूर रहती है ना। जो नियर टू द प्रिंसिपल एक्सिस है वो क्या कहलाती है? पैरेक्सियल है। दिस पॉइंट इज क्लियर? नाउ सी हियर, आफ्टर दिस there is a important relationship F equals to R by 2। ये क्या है? F equal to R by 2 सबने सुना होगा ना। फोकल लेंथ मिरर में क्या होती है? रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ होती है, वो हम बताने जा रहे हैं। इसको P ले लिया, इसको यहां पर C ले लिया, और ये F क्या होता है? बीचों बीच में होता है। ये एक रे है,
जो सिंबल इन्होंने यूज किए वही हम यूज किए हैं। क्या है? ओ ए, दिस इज ओ। सो व्हाट विल बी द नॉर्मल हियर? नॉर्मल ड्रा करने के लिए इस पॉइंट को किससे मिला दें? सी से, सेंटर ऑफ कर्वेचर से। ऐसे ये मिला दिया गया। So now reflected ray will go something like this, obeying the laws of reflection. Laws of reflection को obey करते हुए ऐसे चले। This is the angle of this, you can name as B. This is the angle of incidence I and this is the angle of reflection R. ये दोनों बराबर होंगे फ्रॉम लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। मतलब क्या हो जाएगा? एंगल ओ ए सी क्या लिखेंगे? लेट अस कंसीडर ए कॉन्वेक्स मिरर M1 M2। लेट ए ray of light OA parallel to principal axis fall upon the mirror at the point A. After reflection, it goes along AB. आया समझे? ये AB के along जा रही है। हमको ये प्रूव कर, ये AB के along जा रही है, cutting, intersecting the principal axis at the point F. F will be the focal point. हमको डेफिनेशन से मालूम है F क्या हो जाएगा? फोकल पॉइंट हो जाएगा। ज्वाइन CA। तो देख लो फ्रॉम लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन एंगल OAC इक्वल्स टू BAC। कैसे? फ्रॉम लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। नाउ यू कैन सी हियर एंगल OAC विल आल्सो बी इक्वल टू ACF। क्यों? क्योंकि ये दोनों एंगल क्या है? अल्टरनेट है। ये कैसे हैं? अल्टरनेट है। सो एंगल OAC इज इक्वल टू एंगल ACF। सब लोग देख के समझ ले। OAC ACF के बराबर होगा। क्यों? क्योंकि अल्टरनेट है, अल्टरनेट एंगल्स। आ गया? नाउ यू कैन सी हियर दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल एंड दिस इक्वल्स टू दिस। तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे कि नहीं? सब लोग फिर से देखें, ये वाला एंगल इसके भी बराबर है और इसके भी बराबर है, तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे? बराबर। आए समझे? देयरफॉर एंगल BAC इक्वल्स टू एंगल ACF। And when these two angles will be equal, then what will be? इनके सामने वाले साइड्स बराबर होंगे। आए समझे? सो इन ट्रायंगल ACF इसके सामने CF और इसके सामने AF ये बराबर होंगे। AF will be equal to CF। Sides opposite to इक्वल एंगल्स ऑफ ट्रायंगल, मतलब AF इक्वल्स टू CF। अब देख लो, अगर हम देखें तो मिरर का एपर्चर क्या होता? तुमने लेंस देखा, जो लेंस है उसका एपर्चर कितना होता है? 5 सेंटीमीटर। उतना ही मिरर का भी होता, मिरर का भी साइज उतना ही होता, वो 5 सेंटीमीटर के सर्किल के बराबर का है साइज। आए समझे? 5 सेंटीमीटर के सर्किल के बराबर का है, तो तुम देख सकते हो ये तो प्रिंसिपल एक्सिस हो गई। प्रिंसिपल एक्सिस हो गई कि नहीं? इसी तरीके से शो कर।
हमने इसको ऐसे ऊपर किया। देख लो ये सबको दिखाई दे रहा है, ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गई। हम मिरर बड़ा साइज का ले लेते हैं, ये मिरर है, तो प्रिंसिपल एक्सिस ये हो गई ना। अब यहां से ये कितना है 2.5 सेंटीमीटर, ये कितना है 2.5 सेंटीमीटर। तो जो एक्सट्रीम रे भी होगी, एक्सट्रीम रे विच फॉल्स अपॉन द मिरर, उसकी डिस्टेंस प्रिंसिपल एक्सिस से कितनी होगी 2.5। आए समझ? मतलब क्या है, ये बहुत अधिक लार्ज नहीं होगा, एपी बहुत लार्ज नहीं होगा। एंड व्हेन एपी इज स्मॉल देन व्हाट विल हैपन, this distance will be equal to AF will be approximately equal to PF. AF will be approximately equal to PF. You can see here, if aperture of mirror is small, aperture mirror is small, मतलब अगर ये चीज स्मॉल है, then point A will be close to the point P. Then point A will be close to P, और point A point P के close होगा, then AF will be equal to PF. AF क्या होगा, PF के बराबर होगा। आए समझे? अब AF जब PF बराबर होगा तो AF तो CF के भी बराबर है, तो PF and CF will become equal. This point is clear? This is clear or not? Yes, So sir. here PF will become equal to CF. AF equals to CF, AF equals to PF. So PF equals to CF. Now in both sides you add PF. So PF plus PF equals to CF plus PF. PF plus PF 2 times of PF. What is CF plus PF? CF plus PF, it is equal to PC. अब सब लोग देख लें, PF क्या है, फोकल लेंथ है, PC क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर की डिस्टेंस, रेडियस ऑफ कर्वेचर। सो 2F equals to R, therefore F equals to R by 2. समझ लो। अभी कनेक्ट होंगे।